जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 516th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So I hope you guys are doing well. Everybody is safe, sound, and you are looking forward to this live analysis for tomorrow's session. So how was your day? Just let me know. And before I proceed, let me just update you guys that next training is scheduled on March 5th and 6th, which is Saturday and Sunday. And if you are interested to join our Telegram group, if you want to be a part of our student learning group, you can register for this training. And once you register, you will be added in that. So we will cover a lot of topics: price action, which is our specialty, technical analysis, and some specific trading setups that we look forward in this market across different asset classes. So all those who are interested, who are looking forward to joining this training, you can register as soon as possible, and you will be added in the Telegram group where we share a lot of things which are definitely beneficial for our students as a trader and as a market learner as well. So all those who are from my group, let me know if our training is worth, if our support post training is worth joining. एंड क्या आपको टेलीग्राम ग्रुप से इस मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है इसमें हमने आपको आगे रखा है, आपकी हेल्प की है या आपको गाइड किया है किसी भी तरीके से, तो आप जो है अपनी सहमति ज़रूर यहाँ पे दिखाइए. बिकॉज many people are definitely going to look for some genuine assistant both in terms of learning as well as in terms of navigating the markets in coming years. So the sooner you join, the better it is. Okay, so as of now, European markets are reeling under the pressure. कल रात को हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, मैक्रो एनालिसिस हमने किया था, और कल मैंने रात को आपको कहा था कि वेरी 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 हाई चांस कि आज हमें निफ्टी 16,800 का लेवल हमें देखने मिलेगा. दैट इज द प्रिसाइसली द टारगेट दैट आई एम एंटिसिपेटिंग. दैट शुड बी डन. 16,600 may or may not come because today again the US Fed will meet and they will announce something. But 16,800, that was a very very sure short deal. And क्यों था ये भी मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा. कल थोड़ा टाइम नहीं मिला तो मैं टेक्निकलिटीज को थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों 16,800 was a credible target for this down move. Not a target, just the first target, right? Now, let us see what is happening right now. So, right now, what I can see is the US VIX has again shot up and it is inching towards the 30 mark, 3030. And Nasdaq is up by 1%, which is simply a short covering. Again, it will be sold off. German DAX, French CAC, and FTSE 100, all these are down by almost 2%. Japanese Nikkei was also down by 2%. Hang Seng down by 1.5%. So all these global markets, they are definitely reacting against the Russian news. And on the Russian news, basically there is some sort of backtracking which is happening. Ukraine has said that it is not going for NATO and all those things. So we are not bothered about who is going to NATO, who is at war, and who is making some peace agreement. What we are interested is how the prices are reacting. In last 24 hours, there has been a almost a million times increase in geopolitical experts across India. तो पिछले 24 घंटे में हर बंदा जो है वो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हो चुका है. तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी को एक नया पूरा एक पैनल जो है बिठाना चाहिए, उन्हें इनवाइट करना चाहिए, जो हमारे जो एक्सपर्ट पैदा हो गए हैं पिछले 24 घंटे में, जिन्हें सब कुछ पता है, यूक्रेन की हिस्ट्री, आज रशिया की भी हिस्ट्री उन्हें पता है. सो यू सी, दिस इज वेयर ह्यूमन फैलेसी लाइज. दिस इज वेयर humans in general, they they go wrong, because what is happening in Russia and Ukraine, that is least of your concern. How the prices are going to behave, how they are going to bottom, and how they are going to bounce back, if at all, you should be concerned with all these things. ठीक है ना? यू शुड बी कंसर्न विद ऑल दीज थिंग्स. बाकी आज रशिया यूक्रेन है, कल भाई कोई और होगा, परसों कोई और होगा, तो क्या आप सबके एक्सपर्ट बनोगे? Make sense? So forget what is happening over there. Yes, it is good to have some extra knowledge, but don't try to be geopolitical expert. That is not going to help you at all in this sort of a market. What is going to help you is the knowledge about the technicals, the macros, and how these prices behave in such scenarios.
So you should be focusing more on the chart, not on all these things. चलो तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी कि अभी क्या सिचुएशन है. So global markets थोड़े down है, that is very very obvious, but still I'm not seeing that capitulative sort of a move. S&P 500 ने एक बहुत ही अच्छा 61% रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया हुआ है. आई थिंक दिस बॉटम इज गुड. ये बॉटम ठीक है. मुझे लगता है कि मे बी अगर कुछ पैनिक की सिचुएशन होता है तो वी कैन कम हियर. बट आई थिंक यूएस मार्केट, क्योंकि ये सबसे पहले से करेक्शन में था, आई थिंक इट हैज डन इट्स जॉब. And unless something very bizarre happens, I don't think US market is going to break below 4200 for the time being. Okay, I still believe ओवरऑल. आपको याद होगा कि मैं पिछले 2-3 महीने से यही कह रहा हूँ कि यूएस मार्केट जो है एक लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन में है. करेक्ट. यहाँ पे एक बहुत ही हैवी डिक्लाइन हुई. यहाँ से फिर हम एक बाउंस की उम्मीद कर रहे थे टिल 4700, 4720. It went till 4600 and then it has dropped. I think still I will go with this view for the US market, but then I'm expecting a larger drop to happen sometime later, in Feb or March or April, sometime in next 45 days. I am still expecting a nasty move below 4000 on the S&P 500. The upside is limited. 4700, I think that is a sealed, that is limited. I don't see US market going above that. Overall, we can see some larger swings. 4200 is the base, 4700 is the ceiling. Within this range, I think US market is going to toss around for some time, and then I'm expecting below 4000 on the S&P 500. ये मेरा व्यू है. नैसडैक की बात करें तो नैसडैक पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, बिकॉज आईटी पैक जो है दैट इज क्लियरली impacted by Nasdaq. On Nasdaq, I am not very bullish. Okay, I think Nasdaq has broken decisively on all the time frames, on monthly, weekly, daily, and this is the channel, the beautiful channel that was running since last 18 months. It has broken that very badly. Backtrack हुआ, backtest हुआ, again it got sold off. So Nasdaq में मैं समझता हूँ कि for the timing we have this technical support at 14,000 level, and the upside I think is sealed at 15,800. So anybody who's trading Nasdaq, you may choose to go long here with very very low stop loss for a technical move like this. But again, I'm not very bullish. I expect Nasdaq to again roll over sometime in future and keep making these head and shoulder patterns. Okay, so I'm expecting the repeat of what has happened on the left hand side in this circular sort of a movement. So as you can see, what all you have seen here, I'm expecting a similar move here. Okay, now market में देखिए ऐसा है कि ये मार्केट, अगर मार्केट के लिए रियल में हेल्दी क्या होगा कि मार्केट एक शॉट में सारा करेक्शन जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले. That will be actually little scary, little panicky in the short term, but it will be good for market. Okay, similar thing happened during corona. Okay, there was a vertical drop. Okay, we did the entire price correction in the least possible time, and then everything became unidirectional, everything became bullish. ठीक है, तो या तो आप जल्दी प्राइस करेक्शन कर दो. ओके, या फिर क्या होगा कि जितना ज्यादा ये टाइम कंज्यूम करेगा उतना ही नेस्टी ड्रॉप्स ये देने लगेगा, एंड पिछले बॉटम्स के पास जाके जब सब लोग एकदम पैनिक हो जाएंगे, अगेन इट विल बाउंस. ओके, सो ये मार्केट का टेक्सचर जो है ना, यही मैं कह रहा था, ग्रुप में भी कह रहा था कि वी आर गोइंग टू सी मार्केट कॉन्टेक्स्ट, मार्केट स्ट्रक्चर विच most of us have not experienced in the last 20-25 years. Okay, so we are going in the pre-90s era, जहाँ पे मार्केट बहुत लार्जर स्विंग्स किया करते थे, एंड इट यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. ओके, सो नैस्डैक ये व्यू है मेरा. सीधे आते हैं करेंसी फ्रंट पे, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर. सो यूएस डॉलर इज बुलिश, यूएस डॉलर हैज स्टार्टेड टू मूव अप, so we are expecting US dollar to again shoot higher. But I will be very keenly watching how it behaves at the previous swing high, because US dollar में अगर वाकई में, if you see, if there is going to be some serious trouble, the US dollar will show that thing in its price action. As of now, ये दिखा नहीं रहा है. पिछले 24 घंटे में से जो यूएस डॉलर की बिहेवियर है वो कुछ खास नहीं रही है. यस, इट इज अप, बट दैट सॉर्ट ऑफ behavior which should happen, that is not happening. So still, nevertheless, as per the charts, we are expecting this bottom to hold, and we are expecting one round of up move till here. Now this is where I will be very keenly watching, because if we cross this, that would mean
there has been some extraordinary changes on the ground level, and the market is definitely pricing in more conflicts. It may not be like a full blown war, but there will be a lot of hiccups. There will not be peace. There will be these news flows that will come. And let me also remind you guys, I think such news are going to come over the weekend going forward. Okay, this reminds me of those 2017 to 2019 time period when the North Korea used to test its baby missiles over the weekend. So अगर जो लोग उस टाइम से हैं मार्केट में, आपको याद होगा कि that North Korea used to play missile over the weekend, and it was Trump versus that guy, right? And almost on every month, on some of the weekends, we used to see this missile testing, and on Monday market used to open down with a lot of panic, and then everything used to bounce back. So that led to a very choppy and zigzag market with a lot of volatility. I think similar thing is going to repeat over here, where the geopolitical news will mostly come on the weekends, and it will create volatility, and then during the week it will subside, and again things will start to follow as per the charts. तो ये कुछ एक लग रहा है मुझे होगा. बहरहाल आज यूरो जो है आज अच्छे से डाउन है, एंड दिस इज समथिंग which is suggesting that the turmoil in the European area, I think that is here to stay. Okay, because euro down by 0.33 when the US dollar itself is not doing great. I think this clearly shows uh, the bearishness. The market, European markets, they are expecting bearishness. They are not expecting peace. They know that these things are going to continue, and that is why the euro is very very weak today. I would say euro अपने आप में वीक है, यूरो डॉलर के स्ट्रेंथ की वजह से नहीं वीक है, और ये एक बहुत ही अच्छी निशानी है, एक अच्छा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है मेरे लिए. ब्रिटिश पाउंड इस समय अगेन दिस वाज आल्सो डाउन, and today intraday I think there was one good trade in the GBP INR where it dropped by 40 पैसे in a single shot. और यूएसडी जेपीवाई जो है आज काफी ऊपर था. करेंसी फ्रंट पे जो कल मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, जो रेंज दिए हैं, उसी को फॉलो हम करेंगे. ओके, एंड जैसा कल मैंने बताया था कि रेंज एक्सपेंशन होगा, वॉलेटिलिटी होगी, तो थोड़ा पोजीशन साइजिंग को हम कम रखेंगे. सो आई थिंक करेंसी ट्रेडर्स, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन मैनेज दीज थिंग्स. लेट अस टॉक अबाउट कमोडिटीज वेरी क्विकली. राइट नाउ क्रूड ऑयल. सो क्रूड ऑयल में 6,600 के स्लैब से हमने जो है बाई साइड में आपको करेक्ट बताया था, एंड 71-7200 हमारा टारगेट था. आज 71-76 हो चुका है. सो दिस वाज अगेन येट अनदर मैसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर साइड. 6600 से ऑलमोस्ट 7200. और कल मैंने आपको ये भी बताया दोस्तों कि गोइंग फॉरवर्ड आई एम एक्सपेक्टिंग फर्दर रैलीज टू हैपन इन द क्रूड ऑयल. बट अभी अगर वापस से फ्रेश डिप आएगा तो हम बाय करेंगे. अब टेक्निकल ट्रेडिंग एकदम इस वीक के लिए, लेट मी टेल यू that 6800 is the floor. Okay, so any dip that comes near 6800, again we should buy. Okay, and next target will be 7400. So ये होने में maybe I think it will take some time. I don't think it will run away quickly. Yes, 7250, 73 can happen in next 24 hours, but there can be one pullback because we are approaching the resistance area. So over here, be careful with your longs. Overall, we are still very bullish, but we will prefer to buy on dips again near 6800. So अभी 7100 चल रहा है. जिन्होंने भी यहाँ से longs किए हैं, congratulations, you have made a very very huge move. You have got again very huge move in the crude oil. Natural gas की बात करें, ठीक है, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस में कैसा लगा नेचुरल गैस का लॉन्ग. ठीक है, those who are spamming, you will be blocked. Don't spam. If you're not interested, you can leave. You can go to Ukraine, probably help those guys in war. Don't show your aggression with me. ठीक है. सो नेचुरल गैस जो है, आपको याद होगा कि थर्सडे के दिन या फ्राइडे के दिन इसको हमने लॉन्ग कराया था 295-300 के रेंज में. एंड अगेन व्हाट अ बम्पर मूव थैंक्स टू यूक्रेनियन क्राइसिस. 318-317. सो एनजी में एक और बहुत ही हाई लेवल परफॉर्मेंस रही है. सो एनजी में मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप 290
जो है अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करके 290 रख सकते हैं. दिस इज ऑलमोस्ट लीस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस. एंड टुमारो वंस वी क्रॉस दैट 320, आई थिंक इट इज गोइंग टू रॉकेट मैसिवली. 320 के आसपास जो है थोड़ा एक रेजिस्टेंस है. 320 अगर क्रॉस हो जाए तो नेचुरल गैस स्ट्रेट अवे 350 जाएगा. ओके, सो आई थिंक इसे कंटिन्यू करेंगे, इसको आप होल्ड करिए, थोड़ा चर्न कीजिए, रोटेट कीजिए, दैट यू कैन डू. बट वी आर बुलिश एंड नाउ 290, 289, 290, it's going to be a floor for natural gas. I'm expecting much higher prices. 350 should be done very quickly. Okay, and if the tensions escalate, then I think 350 के बाद it will not stop till it has reached 440 and 450. So that will be a massive move in the natural gas market. बाकी कमोडिटीज में जो कल हमने डिस्कस किया था प्रीटी मच वही है. गोल्ड में आज काफी बड़ी मूव आई है, 800 पॉइंट्स की मूव आई है. एंड आई थिंक गोल्ड हैज रियली मूव्ड अ लॉट. गोल्ड इज स्टिल बुलिश, बट फ्रेश ट्रेड यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा. 50,000 इज अ मेजर राउंड नंबर एंड वी हैव ओपनड विद अ गैप and there is a lot of volume that is coming in gold, and that is not a good thing. That is not a good thing. I will tell you why in next couple of days. So gold में 50,000 का जो स्लैब है MCX के गोल्ड पे, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. यहाँ पे हम देखते हैं, कल एक बार आने देंगे, और यहाँ पे अगर गोल्ड थोड़ा फेल करता है, थोड़ा वीकनेस दिखाता है, तो आई थिंक मैं गोल्ड को शॉर्ट करना पसंद करूंगा. डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शॉर्ट गोल्ड नियर 50,000 फॉर a down move of 1500 points towards 4850. But as I said yesterday, बिना किसी टेक्निकल रिवर्सल के, बिना किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन के या किसी वीकनेस के इसे शॉर्ट नहीं करना है. बिकॉज गोल्ड, इफ यू रिमेंबर, लॉन्ग टर्म वी आर वेरी बुलिश ऑन गोल्ड, एंड लॉन्ग टर्म में वी आर एक्सपेक्टिंग दिस 56,000 टू बी क्रॉस्ड. नाउ लॉन्ग टर्म की शुरुआत हो सकता है यहाँ से हो गई हो, ये भी हो सकता है. सो वी डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ अ बर्निंग ट्रेन. यस, 50,000 इज अ डेफिनेटली इज अ मेजर रेजिस्टेंस. तो वहां पे अगर हमें कुछ वीकनेस दिखेगा तो हम इसे शॉर्ट करना पसंद करेंगे फॉर एटलीस्ट 1,000 पॉइंट्स टू 1,500 पॉइंट्स. ठीक है, ये व्यू लेके चलेंगे. अभी देखते हैं, कल अगर ट्रेड मिलेगा तो मैं स्टूडेंट ग्रुप में अपडेट कर दूंगा. सिल्वर अगेन बुलिश है, तो सिल्वर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है. कॉपर अगेन बुलिश है. सो कॉपर में अगेन एक डाउन मूव आया था, अगेन इट हैज मूव्ड अप. If you remember that 756 area came very close, 761 के आसपास आया था. Nevertheless, कॉपर में बाय ऑन डिप अप्रोच, जैसा कल मैंने सजेस्ट किया है, वो करेंगे. एक कमोडिटी जो थोड़ा सा अभी ट्रबल दे रहा है वो है जिंक. तो जिंक में कल रात को मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर किसी ने पिछला मूव नहीं प्ले किया है, जो मैंने 300 से 312 की मूव सजेस्ट की थी टुवर्ड्स दिस, इफ यू हैव नॉट प्लेड, यू कैन अगेन बाय नियर 300 to 99 and keep a stop loss. So suppose if you have bought, it is trading at the cost. I think it will be a little risky to carry overnight. So you can exit today almost at cost, or maybe at 1 point stop, 1 point loss. Tomorrow, if there is a gap up, say above 302, you can again buy and keep 298 as a stop loss. ठीक है, ओवरराइट मैं थोड़ा सा रिस्क आपको नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई रिस्क आप ना लें, इसलिए मैं कह रहा हूँ. वरना लेवल तो बहुत ही फैंटास्टिक है, सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी नाइस. बट आई डोंट वांट दैट यू टेक एनी ओवरनाइट रिस्क. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 295 एज अ स्टॉप लॉस, इफ यू कैन अफोर्ड, ओनली देन यू शुड कैरी, ओनली देन, और एल्स जस्ट एग्जिट एट द कॉस्ट. और अगर वापस से यूटर्न लेता है तो अगेन हम इसे बाय कर लेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 299 298. ठीक है, सो दैट्स इट. कमोडिटीज में आज इतना ही कवर करेंगे. बाकी इथेरियम और बिटकॉइन में भी कुछ खास नहीं है, सो इसे हम स्किप करते हैं. सीधे आते हैं अब इस समय हमारे इक्विटी मार्केट्स में, विच इज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड दी स्टॉक्स. दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए और फेसबुक ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं. सो टुडे इट वाज अ वैलेंटाइंस डे, एंड मार्केट जो है आपको पूरी तरीके से रेड, कंप्लीट रेड अक्रॉस द बोर्ड. ठीक है, कहीं भी हरियाली का कोई आलम यहाँ पे नहीं है. एंड एवरीथिंग, लिटरली 99% थिंग इज इन रेड. नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग, CNX स्मॉल कैप. ठीक है, CNX स्मॉल कैप, कल आपको याद होगा तो इस इंडेक्स पे मैं सबसे ज्यादा, मुझे इसके बारे में चिंता थी कि इसका क्या होगा. इफ यू रिमेंबर यस्टरडे,
We discussed that there is a massive head and shoulder pattern here, very, very massive head and shoulder pattern. And looking at the current situation of rising dollar with rising geopolitical tensions, this looks to be certainly breaking down badly, and obviously there will be gap down opening, and uh, you can see what has happened to your CNX small cap. Okay. Now today's breakdown in Nifty, Bank Nifty, in your small cap index, it should not be taken lightly. Okay. Now suddenly SGX Nifty is up by, I heard that 200 points and people are cheering up and all. ठीक है, कल हो सकता है बाउंस कर दे एक्सेट्रा. बट if you recall 20 days back, 20 days or 25 days back, if you recall, दो बातें मैंने आपको इस मार्केट के बारे में बहुत ही यूनिक एनालिसिस मैंने बताई थी, जो आई थिंक शायद यूट्यूब पे किसी ने इसे कैच किया होगा. सो आई जनरली मेक यूज ऑफ द फ्रैक्टल्स, एंड इफ यू रिमेंबर आई हैड शोन यू दिस फ्रैक्टल. ठीक है. और मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों न्यू हाई तो भूल जाओ, न्यू हाई मुझे नहीं लगता कि 180 दिन के पहले आने वाला है, विच इज 180 डेज फ्रॉम हियर. ओके. एंड एट दैट टाइम वी वर समवेयर हियर, हम यहाँ कहीं कुछ ट्रेड कर रहे थे उस समय. और मैंने आपको ये बताया था कि वी आर इन दिस लेग. ओके. which is we are in this leg, and I'm expecting market to follow this entire fractal, both in symmetry and in magnitude and in time. And next we should have something like this, which means that we are going to take out the bottom which was made here in panic at 16,250. कितने लोगों को याद है ये चीज? मैंने ग्रुप में भी डाला था. ठीक है. एंड राइट नाउ आई कैन, इफ यू कैन सी दिस, we are exactly almost doing, we are almost repeating that same fractal in larger time. ठीक है. सो इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यही चीज ये मार्केट जो है रिपीट करेगा. हियर व्हाट हैपेंड इज समथिंग विच इज कंप्रेस्ड इन जस्ट 65 days. ठीक है. नॉट 65 days, आई थिंक 120 days. और यहाँ पे एक लेग ही आई थिंक 120 days का है. ओके. सो मैं टाइम थोड़ा भूल रहा हूँ, बट इट इज वेरी वेरी सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर स्टफ विच इज हैपनिंग. ओके. So based on the fractal, based on the earlier percentage correction in Nifty, which means that whenever we have a greater than 10% correction, you either bottom uh, by 65 or 75 days. If you don't bottom, bottom का मतलब है न्यू हाई बनना चाहिए. अगर नया हाई नहीं बनता है तो बाजार हमेशा 180 दिन तक न्यू हाई नहीं बनाता है. ठीक है. तो अगर बाजार को अगले 180 दिन तक, अगले मतलब यहाँ से 180 दिन तक अगर न्यू हाई नहीं बनाना है, तो बाजार क्या करेगा? बाजार प्राइस एंड टाइम करेक्शन करेगा, कॉम्प्लेक्स करेक्शन करेगा, जैसे एलियट वेव में बोलते हैं. ठीक है. एंड दैट इज व्हाट दिस मार्केट इज डूइंग. दिस मार्केट इज नॉट गोइंग टू टैंक below your this, broadly speaking, 16,000 level. It will actually need a proper war or maybe some black swan event. But what this market is going to do is it is going to test your nerves. It is going to do such a sector rotation where every oversmart trader, especially born after COVID in the market, is going to badly slaughtered and decimated. सो आज आप देखिए, मेटल, सीएनएक्स मेटल 5% डाउन है, पीएसयू बैंक 5% डाउन है, स्मॉल कैप इंडेक्स 4.5% डाउन है, निफ्टी 500 पॉइंट डाउन है. और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एक दिन निफ्टी 500 पॉइंट गिरने वाला है बहुत ही जल्द. लेट मी ऑल्सो मेक अनदर प्रिडिक्शन दैट इन कमिंग 90 डेज, 90 डेज तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट आई थिंक 45 डेज के आसपास निफ्टी विल मूव बाय 1000 पॉइंट इन अ सिंगल कैंडल, इन अ सिंगल सेशन. ओके. कुछ 2-3 डेट्स मेरे मन में है, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा तो मैं शायद आपको एक डेट भी बता दूंगा कि इस दिन के आसपास जो है मार्केट में इंडेक्स हमारा 1000 पॉइंट स्विंग करेगा एक ही दिन में. ओके. सो you, if you are not, why I am saying all this thing is because if you are not learning, evolving with this market, then you are definitely going to have a tough time. जब भी मार्केट दोस्तों नीचे आता है, अगले दिन या एक दो दिन में बॉटम करता है, इट स्टार्ट्स टू मूव अप, आई सी द सेम नॉइज दैट इट्स अ बुल मार्केट बाय द डे, एंड सेंसेक्स हैज रिटर्न्ड दिस मच CAGR, एंड ऑल दीज थिंग्स. आप एक बात समझो कि जब
मार्केट ठीक है बेरिश है और पॉजिटिव बातें सब आती है ना, इसका मतलब है कि जो पीआर मशीनरी है ना बड़े लोगों की, ये आपको टोपी पहना रहा है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ चार्ट्स को देखो, प्राइस एक्शन को देखो, और अपनी कैपिटल अपने रिस्क के हिसाब से जो है आप ट्रेड करो। समझ रहे हो बात को आप? नहीं तो बुरी तरीके से फंस जाओगे इस मार्केट में। सेक्टर रोटेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका वैक्सीन आज तक नहीं बना है, ना कभी बनेगा। ठीक है, और स्पेशली अगर आप 10-15 साल से बाजार में अगर हो, पहले आपने देखा है तो आपको पता होगा कि पूरी अनिल अंबानी कंपनीज आज नहीं है, आपके जेपी एसोसिएट्स नहीं है, यूनिटेक्स नहीं है, कहाँ गए वो सब? निफ्टी तो यस, निफ्टी आज है 18,000 पे, 20,000 पे है, बट उनका क्या हुआ? और पीआर मशीनरी आपको हमेशा विप्रो और इन्फोसिस और ये वो की स्टोरीज आपको बताएंगी। सो खैर, ये कुछ बातें थी जो रिकैप करना चाहता था मैं। अब आते हैं सीधे कि कल क्या होगा और कल का सिचुएशन क्या है। सो लेट अस लुक सम चार्ट्स, लेट अस हैव अ लुक एट सम चार्ट। सबसे पहले लाइन चार्ट की बात करते हैं, वेरी सिंपल फॉर्मेट ऑफ चार्टिंग। एंड इफ यू रिमेंबर, आई हैड expressed one concern yesterday, and that is that we are most likely going to open gap down, correct? And if by doing so we are going to break this, we are going to break this. This is also a sort of a triangle, not a very big triangle I would say, but ठीक है, एक है triangle. And this was वन लाइन जहां पे हमने लास्ट टाइम ब्रेकआउट किया था, रीटेस्ट किया, और एक हमने शुरुआत शुरू की थी, एक हमने मूव शुरू किया था, और आज आज हमने एक पिवॉट, दो पिवॉट को बड़े गैप के साथ हमने ब्रेक किया है। एंड नॉट ओनली दैट, वी हैव क्लोज्ड बिलो दिस लाइन ऑल्सो। नाउ इन दी शॉर्ट टर्म इसका रेप्रिकेशन कोई हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है अभी बच जाए, बट दिस हैज कन्वेड सम मैसेज टू मी which I will reveal in coming days. Okay. Now, on the RSI, we are forming a very clear-cut head and shoulder pattern. Also, MACD is still in negative territory. So all this is not good. Volatility अगर बढ़ेगी और bearish context है तो 400-500 पॉइंट के जो swings है ना, हर दिन आपको देखने मिलेंगे. So sometime you may get lucky, but somewhere down the line you will be caught by the market. Now this is a very nasty thing. आज मैंने ग्रुप में around 10:50 a.m. or 11 o'clock, when I saw that Nifty is not doing anything. Okay, if you look at the intraday chart of this Nifty and Bank Nifty, एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी लगभग 11 बजे के आसपास. And what was that? That Nifty, despite being such a oversold territory, it is still not trying to go towards the high of this opening candle. जब भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो प्राइस एक्शन हमेशा एक ही टाइप होता है, which is it might go little up, ठीक है, and then again it will be sold off later during the day, and we are definitely going to break this. और इसके नीचे एक ही सपोर्ट था, वो था 16,800, और कल शायद वही लेवल मैंने आपको बताया था कि 16,800 पे मैं वेट कर रहा था एक बंदे का, जिसने कल लाइव सेशन के टाइम पे ही सेड कि सब लोग बेरिश है, वो नहीं आएगा. एंड आई चैलेंज्ड हिम कि आई विल मीट यू एट 16,800. आई होप यू मीट मी ओवर देयर. सो 16,800 केम, बट आई कुड नॉट सी दैट गाय. सो प्राइस एक्शन देखो, इसीलिए मैंने ग्रुप में भी ये मैसेज किया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू क्रैक लेटर इन द डे. अगर किसी को कोई एक स्वीट ट्रेड दिखता है शॉर्ट साइड में, मे बी थ्रू वी वैप और सम एनीथिंग, मे बी सम ब्रेक डाउन एक्सेट्रा, कोई भी प्राइस एक्शन वाला ट्रेड, तो यू शुड डेफिनेटली टेक इट, बट छोटे रिस्क का. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया और आप स्टॉप लॉस फ्राइडे का क्लोजिंग रख रहे हो. नो, ऐसा नहीं. Look at this structure. Market traded inside this range for entire day. तो जिन्होंने भी अभी इस वीक की मेरी प्राइस एक्शन ट्रेनिंग अटेंड की है, यू शुड रिमेंबर दैट इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसका क्या मतलब होता है, करेक्ट? एंड देन विच एवर साइड इट विल ब्रेक, देयर विल बी अ फॉलो थ्रू, करेक्ट? सो सिंपल था आज का मार्केट, बहुत सिंपल था. अगर आप शॉर्ट करके भी नहीं गए थे तो भी आपको आज इंट्राडे था. बैंक निफ्टी सेम, बैंक निफ्टी तो और भी इजी था. कैसे? इफ यू रिमेंबर yesterday we discussed one thing, that bank nifty is certainly going to come down for sure, but there is a good support at 37,200. If this market wants to save itself, then 37,200 400 यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसे बाउंस करना चाहिए, ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट द डेली कैंडल, इट ओपनड हियर and
during the day, intraday. If you then simultaneously, if you look at the 5 minute chart, if you look at the this chart simultaneously, you will see that after this daily candle opened here, there was least follow through on the upside. There was least attempt made to even go and meet the opening tick. ठीक है, दिस इज लाइक पथेटिक, वेरी वेरी बेरिश। और ये दोनों में था, इसीलिए मैंने जो है वो मैसेज किया कि ये गड़बड़ है बॉस। एंड ये अगला 37,200 अगर टूटा तो फिर सीधे 36,400 ही टारगेट है। एंड यू सी बैंक निफ्टी क्लोज ऑलमोस्ट एट द लोएस्ट पॉइंट, अगर टाइम रहा होता तो 36,400 भी इमीडिएटली आ जाता। सो दीज थिंग्स आर डेफिनेटली टेलिंग अस कि पेन है डेफिनेटली, एंड ये रोटेशनल फेज मार्केट का चलने वाला है कम से कम 10 मार्च तक। ओके, नाउ कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं और क्या एक टेक्सचर होगा हमारा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नाउ फॉर टुमारोज सेशन लेट अस follow one critical level, and that is 16,922 or 930, you can say this zone from where the next selling has started. Okay, दिस इज द पॉइंट। सो कल के लिए दोस्तों मेरा जो मॉब लेवल होगा, मेक और ब्रेक लेवल होगा, दैट विल बी 16,925, and above this there will be some bullishness, at least to tease this level, which is your 17,100 sort of। एंड इफ एवरीथिंग इज गुड देन प्रॉबली 17,200, इससे ज़्यादा मैं देख नहीं रहा हूँ। और लेट मी टेल यू कि अब गोइंग फॉरवर्ड 17,200 is going to be a massive level. It is going to be a massive level, 17,200. On the downside, 16,600 is going to be a massive level. Massive level yani critical. So this is your massive resistance. This is your massive support. For once, if we see market 16,500, 600 making a good daily reversal candle, ठीक है, making a good daily reversal candle, then for technical play I will take a long trade, okay, with 16.3 as a stop loss for 17.2 and 17,480। ठीक है, तो ये एक पोजिशनल ट्रेड आइडिया मैं एडवांस में दे रहा हूँ। 16.6 से डेली रिवर्सल कैंडल होना चाहिए। ठीक है, ओनली इन दैट कंडीशन, अगर वो नहीं है तो फिर नहीं। ठीक है, दूसरी बात कि सपोज 16.6 ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे, then I think this market is definitely hitting the 16,200 and maybe in panic 15,900 also, but 16,000 hit हो रहा है, जो कि I think एक credible bottom होना चाहिए, give or take 1 day or 2 day, I think it should bottom over there. Okay, now ideally speaking जो करंट मार्केट टेक्सचर है, बिकॉज ये इतनी वॉलिटिलिटी है, तो दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू प्ले दिस स्विंग विद सम रिस्क एट हैंड, with some deeper stop loss, keeping in mind that my stop loss can hit very easily, because ideally you should not play this move. Okay, so that is why I said there has to be some conditions. दूसरी जो एक पर्सपेक्टिव है वो ये है आज के प्राइस एक्शन के बाद दोस्तों कि 17,200 ये जब तक अब रिक्लेम नहीं होता है, दिस मार्केट इज लिटरली सेल ऑन राइज। ओके, सो निफ्टी नीड्स टू रिक्लेम 17,200, okay, for any sort of revival, for any sort of a credible bullish price action, and bank nifty needs to reclaim 37,800 at any cost। ठीक है, सो अगर हम एक प्योर एक करेक्ट टेक्निकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो 17,200 के ऊपर ही तेजी एक क्रेडिबल तेजी कहलाएगी, एंड 37,800 के ऊपर ही एक क्रेडिबल बुलिश मूव होगा बैंक निफ्टी में। यहां तक इट कैन ऑल बी जस्ट अ पार्ट ऑफ अ टेक्निकल पुल बैक। क्यों? क्योंकि बॉस विक्स इतना ज्यादा है, ठीक है, वॉलिटिलिटी है, मार्केट एक ही दिशा में तो गिर नहीं सकता। अगर 500 पॉइंट गिरा है तो 300 पॉइंट टेक्निकल बाउंस बैक भी देगा, करेक्ट। सो डू नॉट कंस्ट्रू दोज टेक्निकल पुल बैक्स एज अ सॉर्ट ऑफ अ रिवर्सल, क्योंकि पिछले 3 महीने में जब से अक्टूबर का हाई लगा है, सबको वही लग रहा है कि अब सीधे 20,000, 21,000 एंड 50,000 एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, सो आई जस्ट वांट यू टू हैव करेक्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट, so that
यू कैन प्ले इट बेटर, ठीक है। सो कल का मॉब लेवल है 16,925, इसके ऊपर ये दो टारगेट्स हैं। 17,200 का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरी बात बताई। 16,925 बिलो दिस इट इज सर्टनली बेरिश, एंड 16,800 जो आज का बॉटम है, एंड 16,600 आर दी डाउन साइड टारगेट्स विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट, ठीक है। 16,600 के नीचे क्लोज होता है तो टाटा बाय बाय खत्म, फिर मिलेंगे सीधे 16,000 पे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम निफ्टी। एक बार चेक करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगेन इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट सेम मॉब लेवल होगा, which is the opening bottom near 37,222. So this is going to be our make or break level, 37,250, and on the lower side first target should be 36,400, and in panic 35,800. Above 37,250, I would like to go with only one target at hand, which is 37,900, and that's it. इसके ऊपर जाएगा तो बोनस है या देखेंगे, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इससे ज़्यादा ऊपर मैं उम्मीद नहीं करना चाहूँगा। ओके, सो दैट्स द प्लान फॉर टुमारोज सेशन। एकदम प्रिसाइसली लेवल्स के हिसाब से काम करना है, कोई भी ओपिनियंस वगैरह को यहाँ पे लाना नहीं है, ठीक है। रही बात बाकी टेक्निकल landscape and all these things, so let me tell you that these are not looking good at all. Very very, I'm very disappointed with the sort of price action we have. Ideally speaking बैंक निफ्टी आपको 35,600 के आसपास दिखना चाहिए, ठीक है। 35,600 ideally speaking minimum, which is the retest of this entire 200-day moving average here. इतना आपको दिखना चाहिए आइडियली। एंड निफ्टी जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि 16,600 ये दिखे ना तो ये मार्केट के लिए अच्छा होगा। ये पैनिक करेगा बट ये आने वाले समय में मार्केट फिर उससे बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल आई थिंक। एंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर किसी को देखना है तो काफ़ी दिनों बाद क्वार्टरली चार्ट अब हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सो अगेन सिंस 1992 हर्षद मेहता, रिस्क है, इश्क है, विक्स है, and all these things you see we are at a trouble area from a long term perspective. So ये क्वार्टरली कैंडल है दोस्तों, यानी 3 महीने का एक कैंडल है। वी आर राइट नाउ मेकिंग इनसाइड बार। आई थिंक मार्च एंड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ओके, चलिए लेट अस टेक सम स्टॉक क्वेरीज। काफी बातें हो गई हैं। Okay, let us take some stock queries. All right. So today I will prefer to take super chat queries and the student queries because कल बहुत सारी queries थी तो मैं कुछ ले नहीं पाया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉप लॉस सेव है, अगर सेव है तो ठीक, नहीं तो एग्जिट। आई थिंक स्टॉप लॉस तो इसका जस्ट हिट हो गया है, ठीक है। तो लास्ट टाइम यहाँ पे जो बाय इसमें सजेस्ट किया था 820 और 790 के आसपास का, तो ये आज के पैनिक में हिट हो गया है, तो फिलहाल इसे एग्जिट करिए, ठीक है। जहां भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है रिस्पेक्ट दैट स्टॉप लॉस, वरना फिर आप वही आईटी वालों जैसा हो जाएगा। जो जनता जो आईटी होल्ड करके रखी है ना, विप्रो, इन्फोसिस वगैरह, सो डोंट do this, ठीक है। So stop loss hit Mahindra and Mahindra, we will review it sometime later. Okay, once the market stabilizes then again इसे हम review करेंगे, no issues. Again बहुत सारे messages हैं, let me see. Exited Mahindra, ठीक है, very good, no problem at all, ठीक है। Polycab, let us check Polycab India. So Polycab India again has broken this entire support area with a gap. So see, these are all cracking down, and the eventual target is this black line, which is the 200 moving average placed at 2072. तो कोई भी पुल बैक आता है 2450 वगैरह तक, you should exit because these things are clearly entering in a downtrend, and their only target is to test this 200-day moving average, ठीक है। सो दे विल डू दिस। अब यहां से किस तरीके का इनका बिहेवियर होता है वो हमें देखना होगा। अब ये मत सोचना कि यार स्टॉक अभी यहाँ पे है, यहाँ तक चलो मैं मैनेज कर लूंगा, नहीं, ये वाले माइंडसेट में आना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आई एम डेड श्योर
90% लोग इसी तरीके से सोचेंगे कि चलो इसका तो 200 डीएमए पास में है, तो लेट अस ट्राई एंड लेट अस कीप इट एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस दैट टाइम। नहीं, ये जो वी विल सी है, ठीक है, ये गलत है। यही आपको फंसाएगा शेयर मार्केट में, मैं आज ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो जैसे अभी कल के ट्रेनिंग में भी यही चीज़ मैंने सीखा है कि उसे वहीं का वहीं ट्रीटमेंट दे दो, वैक्सीन दे दो, नहीं तो ये बाद में बड़ी बीमारी बन जाएगी, ठीक है। सपोज यू केप्ट इट हियर, ठीक है, यू केप्ट टिल हियर एंड देन द एंटायर मार्केट स्ट्रक्चर changed and now everything is bearish. So what will happen, all these such counters, they will start moving down by a huge margin, and then you are here and then you will regret that यार मैं यहाँ निकल गया होता तो बेटर होता। So I think let us be process oriented and इस तरीके से ही हमें बिहेव करना चाहिए इस मार्केट में। बाटा इंडिया इज द नेक्स्ट क्वेरी। बाटा इंडिया, बाटा इंडिया देखिए एक अच्छे बाइंग जोन पे आ रहा है, ये अपना एक लॉन्ग टर्म पिक है, तो मैं इसे सजेस्ट करूंगा कि कैश मार्केट में यू कैन बाय। थोड़ा और अगर डिप आ जाए तो 1780 या 1800 के आसपास यू कैन बाय, देयर इज नो इशू। बट एज आई सेड थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा मार्केट में, तो कैश मार्केट में क्वांटिटी अभी थोड़ा कम करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो क्वांटिटी कम करेंगे, 1800 1785 यहाँ पे बाय करेंगे और 1700 के जस्ट नीचे 100 रुपीज का स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक वी शुड प्ले दिस स्टॉक। इसमें जो है एक क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, एंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अभी भी काफ़ी बेहतरीन है, सो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस, ठीक है, देयर इज नो हार्म। सो दैट्स द अपडेट ऑन दिस। बंधन बैंक पे व्यू जानना चाहते हैं। बंधन बैंक हमारा परमा बेरिश काउंटर है। सो बंधन बैंक आई थिंक just it has come it came at the the selling area, in fact, but I was waiting for some more higher levels like 333 basically. I was expecting this trend line to be tested. Okay, and just like past instance, every time it has been sold off from here, so similar thing was expected and we already had this distribution. now आज इस स्टॉक ने क्या किया है कि आज ये खुद ही क्रैक हो गया है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज एनी गुड प्राइस, ओके, यू कैन सेल। आज यहाँ पे ये 200 डीएमए है जो कि थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इफ यू आर ऑलरेडी शॉर्ट देन यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ, आई वुड सजेस्ट 337, which is in English 337. Okay, keep a stop loss of 337 and target can be anything. If you want to short fresh then I think थोड़ा सा ट्रिकी है मामला, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। सो मे बी ऑन सम राइज यू कैन यू कैन शॉर्ट नियर 320 एक्सेट्रा, कीप अ स्टॉप लॉस 337 और 340 एंड होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। सो ये चीज़ हम इस स्टॉक में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है IEX। आई थिंक IEX में पब्लिक फंस चुकी है, ठीक है। हर बार यही मैं हर लाइव सेशन में यही बोलता हूँ, मत बाय करो, मत बाय करो, मत बाय करो, ठीक है। बट you see everybody is still buying, and even if they are not buying, they are not exiting also. That is the problem, they are not exiting also. नेक्स्ट है डीमार्ट एवेन्यू सुपर। ओके, so DMart is again one stock which is sitting at the 200-day moving average, right? But as of now I am not interested. I think I would like to uh, wait, and I would like to see this declining structure converting it into some sort of bullish structure. Okay, now सपोर्ट अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपको वैल्यू बाइंग करनी है, वैल्यू बाइंग यानी कि आपको लगता है कि कंपनी ठीक है, स्टॉक ठीक है, परफॉर्मेंस देगा और प्राइस अच्छा है, तो आप यहाँ पे छोटा बाय कर सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे अब इस टाइप का ट्रेड इस मार्केट में करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। आई वुड रादर प्रिफर टू बाय एट अ हायर प्राइस। आई वुड लाइक टू पे अ प्रीमियम फॉर अ श्योरिटी। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ। ओके, you can buy at lows without any surety, or you can buy at higher level with surety. The choice is yours. So suppose if you are buying here, you should keep a stop loss not more than 3700 or maybe 3825. That's it. If everything works, then you can have edge pattern over here like this, double bottom, 200-day moving average, very nice. And first target इसका हो जाएगा retest of 4600 level. Okay,
Now, why I'm saying that I would like to see a reversal from this structure is purely for this reason, that I would like to see whether the double bottom structure is already in place and how we have bottomed, in what manner. That will give me a lot of clues as to where to buy in the form of a pullback and how far it can go. ठीक है, इसलिए मैं इसे अभी नहीं बाय करूंगा। अगर आपने किया है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। हम किस तरीके से इसे डील करते, ये मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉबली नेक्स्ट टाइम ये काम आएगा आपके। नेक्स्ट इज जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर, Cummings Industry, Havells. So जिंदल स्टील एंड पावर, ओके, रेजिस्टेंस से रिएक्शन हुआ है 486 से। तो बाइंग वगैरह कहाँ है, क्या ट्रेड है, आई डोंट नो, शॉर्ट है कि लॉन्ग है, कुछ लिखा नहीं आपने। बहरहाल अगर देखो इसे बाय करना चाहते हो तो आई थिंक अगर कल ये स्टॉक 384 वगैरह पे मिले, समवेयर हियर 384 to 375, somewhere here, if you get this stock, I think you should take a chance, but stop loss deep है, stop loss है 340 का। ठीक है, बट आई थिंक इसे हम एक बार चांस लेना चाहिए यहाँ पे। ये चीज़ वर्थ हो सकती है। आई थिंक डेफिनेटली चांस लेना चाहिए। कहाँ पे, 375, 380, समवेयर हियर। ओके, एज यू कैन सी, अगर आप, इफ यू आर माई स्टूडेंट, यू नो व्हाट दिस लाइन इज, सो यू कैन ड्रॉ ऑन योर चार्ट, एंड यहाँ पे हमें लेना चाहिए, पर स्टॉप लॉस 340 का है। ठीक है, एंड इफ दिस वर्क्स नेक्स्ट टाइम, देन इट विल बी अ स्ट्रेट अवे न्यू हाई थिंग 540 एक्सेट्रा। सो ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये ट्रेड ठीक है, वर्थ टेकिंग द शॉट है, बाकी आपके ऊपर है। कोल इंडिया नेक्स्ट वीक डिविडेंड है तो बाय, शुड बाय। कोल इंडिया बहुत पहले ही मैं बाय करा चुका हूँ। इफ यू रिमेंबर, लास्ट वीक भी इस पे हमने डिस्कशन किया था, एक बड़ा एक स्पाइक आया था और कोल इंडिया 180 तक का टारगेट था अपना। नाउ अभी इमीडिएटली कोल इंडिया में अगर प्योरली आप टेक्निकल ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपने इसे बाय बाय किया है, आई थिंक 152 रुपीज शुड बी योर फाइनल स्टॉप लॉस। ठीक है, इफ यू आर लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मिड टर्म इन्वेस्टर, तो कोई ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 142 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट होगा 180, 190। एच डी एफ सी किसी ने शॉर्ट किया है 2354 पे, एच डी एफ सी बैंक। दोस्तों चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एच डी एफ सी बैंक देखिए इस समय एकदम मेसी स्ट्रक्चर में है, एज यू कैन सी। लेट मी मेक दिस चार्ट क्लियर। सो दिस चार्ट टेल्स मी that you have a good support level somewhere here. Okay, and we are in a some sort of a distributive leg. The risk running in the HDFC twins is this large head and shoulder. Now, what I feel is that, whenever you have a very obvious sort of a chart pattern and a market which reaches a point of being oversold, then generally they give a false move first to flush out all the weak hands. Okay, and then they start to reverse like this. ठीक है, ये भी हम ट्रेनिंग में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया आपको, फॉल्स स्विंग फील्ड पैटर्न। सो आई थिंक एच डी एफ सी बैंक में दो चीज़ आप कर सकते, अगर आप एच डी एफ सी बैंक में अगर आप लॉन्ग हैं, क्योंकि मैंने खुद आपको 1400 से 1500 में कई महीने से, कई आई मीन सिंस वी केम एट दिस लेवल सम टाइम इन दिसंबर, तब से मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि कैश में 14 to 15 के स्लैब में बाय करके हम रखेंगे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द अप मूव टुवर्ड्स 1800, 1850 एक्सेट्रा। सो ये थीम हुआ तो बहुत अच्छी बात है। Okay, and if 1300 is your stop loss, if 1300 is hit, then kindly exit, take a loss। ठीक है, 100-150 पॉइंट का लॉस होगा अधिक से अधिक, बट अगर कल के दिन कोई कैटास्ट्रोफी होने वाली है तो आप उससे बच जाओगे। दूसरी बात कि अगर ये फ्लश करके रिवर्स करना चाहता है तो हम वापस इसे 1400 पे वापस उठा लेंगे, एंड इन द एंड वी विल हैव द लास्ट लाफ। सो इस तरीके की आपकी एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि लॉस में निकल भी जाना है थोड़े लॉस लेके, और अगर वो फेवर में आता है तो हेजिटेट नहीं करना है वापस बाय करने से। दैट वे यू विल रिमेन सेफ ऑल्सो, एंड प्लस you will capitalize on the opportunity also। HDFC पे query है कि तो HDFC बैंक, if you have shorted, then congratulations, you can trail to 2400। It has broken with a gap down opening, so see, this is what I'm saying।
So keep a trailing stop loss here, and I think you can target 2200 or 2150 sort of a level. Don't uh, keep this short once it is moved up, and for the same reason that I explained just now. Okay, a good level to short this stock came a little while back. This channel, beautiful. Okay, so that's about it. Let us move further. Arvind, there are many queries, बहुत सारे messages हैं. So Arvind Limited. See, Arvind Limited, मेरे ख्याल से तो निकल जाओ. I'm in Arvind Limited. I'm not interested. मेरे ख्याल से निकल जाओ. इसका बेहतरीन लेवल है 104. अगर 104 आता है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं विथ 90 रुपीज एज अ स्टॉप लॉस, एंड टारगेट होगा 150 का. सो समबडी इज मैसेजिंग दैट यूक्रेन इज नॉट ज्वाइनिंग नाटो, तो कल मार्केट ऊपर जाएगा. सारी चीज़ें मार्केट के परस्पेक्टिव में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए. फेडरल बैंक, सी फेडरल बैंक इज वन स्टॉक विच never goes in that same range of you know one 106 and 86. So federal bank mein so we are bearish as of now. Okay, it already came towards very close to the 107. So I think federal bank is going down towards 86 rupees. वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी फेडरल बैंक में. ठीक है. एक्सारो टाइल्स, एक्सारो टाइल्स लिमिटेड जो है 150. ओके. ओहो, एक्सारो टाइल्स का तो भैया कब का हो चुका है इनका तो. लुक एट दिस, the stock is dead since long time. Now it has opening price के भी नीचे खत्म है सब. ये सब you know, क्यों बाय करते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है. हेवल्स, नेक्स्ट क्वेरी है. अगर आपको टाइल सिरेमिक्स में ही बाय करना है तो सेरा बाय करो ना, सेरा सैनिटरी. ठीक है. एंड देयर वाज वन मोर टाइल कंपनी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, फ्रॉम राजस्थान. फैंटास्टिक है, वो सब बाय करो ना, ये सब एक्सारो वगैरह. Okay, so Havels is interesting. Definitely, it's an interesting counter. Again, if you look at this, H pattern बनने का chances है, तो मैं भी wait करना चाहूँगा. ठीक है, I would like to wait. I like this stock. This is really a good counter even in a bearish market, and this is the slab that I'll be watching 1100 के आसपास. If I see one good reversal coming from this zone, then definitely I would like to buy this stock. Okay. अभी नहीं, अभी नहीं. मैं किसी भी स्टॉक में बिना कोई क्रेडिबल रिवर्सल, बिना कोई टेक्निकल रिवर्सल, आई एम नॉट गोइंग टू बाय. ओके. नाउ लेट मी जस्ट show you the bigger picture of Havels, where we are. So we are in this long term channel on higher time frame. So we are almost approaching that channel bottom. ठीक है. So इसलिए ये मुझे पसंद है. It's a good place. So let us wait. I think within couple of days we can get the clarity. You can yourself see in coming days how it is reversing, and एक बार हम ग्रुप में भी फॉलो अप ले लेंगे. ट्राइडेंट, आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले ट्राइडेंट की हमने बात की थी, करेक्ट, कि these type of stocks are pure price manipulation, nothing else. और इसमें से आपकी एग्जिट प्लान अगर नहीं है तो आप क्रैश के टाइम पे फंस जाएंगे बुरी तरीके से. सो ये स्टॉक में आखिरी अगर आपको कोई सपोर्ट है तो 50 रुपीज़ है, एंड आई थिंक इवन इफ इट गोज अप, ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम ऑल दीज काउंटर्स. Cummings India. So this stock is relatively a better counter. Okay, and as of now, I think this stock is good. ये थोड़ा ट्रिकी काउंटर भी है बिकॉज इट हैज गॉन साइडवेज फॉर टू मच. ओके, एंड देर इज अ पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर ऑल्सो डेवलपिंग. तो ये कुछ ज्यादा ही साइडवेज जा चुका है, इसलिए थोड़ा ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा वीकनेस है. बट क्योंकि ये अभी भी सपोर्ट्स होल्ड कर रहा है, देयर कैन बी ए चांस दैट इट कैन मूव लाइक दिस. ओके, सो इसे डील कैसे करेंगे, लेट मी जस्ट एनालाइज हाउ वी कैन डील दिस थिंग. ठीक है. सो इसमें देखिए एक तरीका है ये है कि नेक्स्ट टाइम इफ यू सी दिस स्टॉक नियर 872, you can buy with 842 as a stop loss. It will be sort of a 50-60-40 ratio trade. ठीक है. And if it works then very good. If it doesn't work, take the stop loss. That's all we can do. ठीक है. दूसरा ये है कि इसे अभी आप छोड़ दो,
let it start it uptrend and then we can trade. ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. वैल्यू बाय करना है तो एक्यूरेसी 50-50 होगी, स्टॉप लॉस के सहारे चलना होगा. टेक्निकल बाय करना है तो ऊपर बाय करना होगा, एंड मेनी पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट. ठीक है. यस, एस्ट्रल एस्ट्रल मुझे याद है, एस्ट्रल लिमिटेड, इसे हमने डिस्कस किया था. ठीक है, लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें मैंने आपको ये वाला चीज बताया था ना, पंप वैल्यू एरिया, पंप एंड डंप. दिस इज अ क्लासिक पंप एंड डंप थिंग. जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे, अर्लियर आई यूज्ड टू टीच दिस, हाउ टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन. सो इट्स अ क्लासिक केस ऑफ गॉन, खत्म हो गया ये. 200 DMA, that is the last point of support, and if you are still buying, averaging and all, then I'm not sure कि क्या आप कैसे मैनेज करोगे. These stocks, they are very very dangerous. Okay, let us take some next query. We are almost reaching 1 hour time frame, and I will have to wind up. So IRCTC, IRCTC. ओके, किसी को याद है IRCTC पे? बिना चार्ट ओपन किए मैं पूछता हूँ, किसी को याद है IRCTC पे हमारा क्या व्यू रहा है अभी लास्ट 1 मंथ, 1.5 मंथ में? तो अगर नहीं याद है तो लेट मी रिमाइंड यू दैट आई हैड एक्सप्लेन दैट वी आर इन अ वेरी वाइड रेंज बार. ठीक है, अब ये वाइड रेंज बार क्या है, क्या इसकी लॉजिक है, ये स्टूडेंट्स ट्रेनिंग में आपको कल बताया मैंने. सो वी हैव अ डबल वाइड रेंज बार हियर, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू कम. नाउ सेम इन IEX वाला ही हाल होगा, दैट स्लोली 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 इट विल कम. और मुझे इस चार्ट पे यहीं पे इंटरेस्ट है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनीवेयर इन दिस जोन. आई वांट this stock either at this level, or I would like to see this stock somewhere at higher level. I would like to pay a premium for a surety of trend and momentum, but I would not like to pay anything when it is doing nothing. ठीक है, तो इधर वैल्यू बाय या फिर प्योर टेक्निकल प्ले. सो अभी कुछ नहीं है दोस्त, अगर आपने बाय किया है तो आप कुछ स्टॉप लॉस लगा लीजिए. मेरे ख्याल से 780 आखिरी स्टॉप लॉस है. कोई भी पुल बैक आता है तो यू कैन एग्जिट, और ये बेहतरीन लेवल है 640 660 के आसपास. उस समय हम इसे रिव्यू करेंगे. वेरी हैप्पी टू सी कि समबडी रिमेंबर्स दिस. आपका नाम है एच. ओके, H रख लो, एच ही रखा है तो बहुत बढ़िया. वेरी हैप्पी टू सी, और भी लोगों को याद है. क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड. दीपक नाइट्राइट जो हैं, इनको एक बार चेक करते हैं. दीपक नाइट्राइट, हिंद कॉपर. ओके, सो दीपक नाइट्राइट आ चुका है एक अच्छे लेवल पे, बट बाय मत करिए. अगर बाय किया है तो कल देखना, कल अगर ये स्टॉक ऊपर में आपको मिले तो एक बार निकल लेना. ठीक है. वाई आई एम अवॉइडिंग टू से बाय, बिकॉज यू सी स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो अभी किया है पिछले 5 दिन में, वो थोड़ा रिस्की है. मतलब आई डोंट वांट टू बी, आई डोंट वांट टू एक्ट ओवर स्मार्ट. ठीक है, मैं हम्बल रहना चाहूंगा इस मार्केट में, एकदम डाउन टू अर्थ, एंड आई वुड लाइक टू गिव रिस्पेक्ट टू द चार्ट्स. सो मेरे ख्याल से कल कोई बाउंस आता है या कल नीचे जाता है, एक बार इसको एग्जिट करिए, थोड़ा दिन का समय देंगे. लेट अस सी वेदर दिस हेड एंड शोल्डर इज एक्चुअली क्रैकिंग डाउन और नॉट. ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ निकल जाओ. ओके, अगर ये हो रहा है तो आप फिर बुरी तरीके से लॉस में आ जाओगे. ओके, अगर ये नहीं हो रहा है, सपोज ये हुआ एंड अगेन इट इज स्टेबलाइजिंग, तो मैं आपको डबल बाय करने बोलूंगा, बिकॉज इन दैट केस वी आर डेफिनेटली गोइंग हायर. ठीक है, तो अभी सेफ्टी देखते हैं, तो इसीलिए अभी एग्जिट, अभी कोई बाय नहीं करना है जब तक कि रिवर्सल वगैरह हमें ना दिखे आने वाले कुछ दिनों में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है हिंद कॉपर, सॉरी हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर. दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. इंस्टाग्राम पे शेयर कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. हिंद कॉपर सेम पुराना व्यू है, बुलिश है. हिंद कॉपर आई थिंक ठीक है, इसे आप इस फॉल में बाय करिए. ठीक है, और वही स्टॉप लॉस होगा राउंड अबाउट से 108 105. ओके, देयर अबाउट्स, एंड ओवरऑल वी विल गो विद दिस, still follow this trajectory. Okay, I still like this. If the commodity theme is to play, then I will go with this. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है एम्बर.
Amber Industries, Amber Enterprises. Is this the one? Amber Enterprises? I'm not sure. Let me. Okay, okay. If this is the one, then let me know, or else we'll take some other stuff. Okay. Now, this stock is still very good, सरप्राइजिंगली. ओके. एंड इसमें मैं आपको एक ट्रेड आउटराइट दे सकता हूँ कि अगर ये स्टॉक आपको somewhere near 3100 के आसपास मिले, then I think you should definitely buy. Take a chance with this one. I like this stock. Okay. बहुत ही रेयर है कि ऐसे मार्केट में एक रिलेटिवली अननोन स्टॉक, अननोन नहीं कहूँगा बट लाइक रिलेटिवली अननोन जो है ये पसंद आ रहा है. So that shows that maybe fundamentally or something is definitely good for this stock. And since long time it has been in a very huge uptrend also in last couple of years. So having said that, I think yes, let's take a chance. Buy near 3100, put a stop loss of 2850. Okay. And after a few days, if it is moving higher, then you can again take a follow up. हिंडाल्को ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं एक हमारे प्लेयर. ओके, लेट मी सी. हिंडाल्को में देखो मैं बुलिश बहुत टाइम से हूँ, ठीक है. एंड न्यू हाई की मैंने आपको एक प्रॉमिस की थी. हिंडाल्को में कितने लोगों को याद है कि हम आउट राइट बुलिश थे, स्पेशली कहाँ से, जब ये ब्रेक हो गया था, ठीक है. सो सिंस दैट 470 के बाद से मैं बहुत ही श्योर था कि हिंडाल्को सबसे पहले मेटल काउंटर में न्यू हाई बनाएगा, या तो पुराना हाई को टेस्ट करेगा, विच इज 550 560. एंड दैट हैज कंप्लीटेड, ठीक है. नाउ अगर आप अभी आपने मैसेज किया कि हिंडाल्को कॉल वॉल बाय किया है, तो देखो ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, बाय नहीं होती है, ठीक है. अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा आपको. यू कैन बाय नियर 497 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 475 फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 590, ठीक है. बट थोड़ा वेट करो. ओके. This is not the place to buy. This is the place to exit. The place to buy is either at a previous major swing or a local breakout within a larger swing. जो मैंने अभी कहा उसे लिख लीजिए, बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में. चलिए दोस्तों, टाइम टू वाइंड अप. वी हैव कंप्लीटेड 1 hour ऑफ लाइव स्ट्रीम. एक दो क्वेरीज और लेंगे एंड देन वी विल हैव टू कॉल इट अ डे. रिलायंस, रिलायंस में अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी शुड कम. आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू दैट 2250. तो वही पुराना व्यू है रिलायंस में, नथिंग न्यू. रिलायंस में आई बिलीव वेरी सून a time cycle is coming up. Okay. After the Feb expiry, I think it is going to make a falling wedge or sort of something over here. So keep an eye on Reliance. This is the place to buy 2250. यहाँ पे आप देयर अबाउट 2250 75 एक्सेट्रा. एंड स्टॉप लॉस हम इसमें थोड़ा सा वाइड रखेंगे, 2150 एक्सेट्रा रखेंगे. एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस. ओके, इट्स अ सेफ ट्रेड. आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. नाउ रिलायंस में इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और ऐड करना है रिलायंस में, क्योंकि अब अडानी जी जो है दैट इज ही हैज बिकम नंबर वन. सो I have noticed something in the Reliance group. Okay, not on Reliance chart. I'm seeing something else. So there is some trouble with the Reliance group. Okay, तो इसलिए आने वाले 6 महीने में मैं इस स्टॉक को बहुत क्लोजली वॉच करूंगा और एक बहुत बड़ी प्रिडिक्शन मैं करूंगा, ठीक है. अभी 6 महीने पहले हमने ये बताया था कि अडानी विल टेक ओवर मिस्टर अंबानी. दैट हैज हैपेंड. नाउ there are some things which I would like to watch and reveal later on. ठीक है, maybe group में, not in public. For the time being, play this move. ब्रिटानिया. नेक्स्ट क्वेरी है ब्रिटानिया. ब्रिटानिया देखो वही वाली कहानी है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद एंड वॉट एवर दैट स्लैंग इज. तो ब्रिटानिया ये बार बार वही करता है, ठीक है. एवरी टाइम कम्स नियर 33 एंड गोज अप. नाउ रिसेंटली ब्रिटानिया पे मैंने कॉशियस रहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि इसका जो डेली जो वीकली और मंथली चार्ट है ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था. ओके. नाउ सपोज यू हैव बॉट in cash, then it is okay, you can hold for some days, some weeks, till 3000 is holding, you can hold. In the last 2 years, every time we have got one big swing, every single time. So let us hope we get that also.
बट आपको कैश में बाय किया है तो ठीक है, इट्स अ वेरी गुड लेवल एंड वर्थ टेकिंग द शॉट अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैश में। ओके, what what I think is what I think is going to happen is this stock, because it's related to wheat, it's related to biscuits, ठीक है, wheat and food product के थोड़ा कैटेगरी में आएगा। If my sense is correct, then after some correction, some correction, this stock must rally very very hard. Okay, because the food inflation thing is actually happening a lot. So I think the big guys, they are purposely dumping it for the time being. ओके, देखते हैं। ओवरऑल अगर बाई किया है तो ठीक है, 3,000 का बट स्टॉप लॉस है बॉस, 3,000 तक आपको होल्ड करना है। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो देन दिस इज द लेवल 3300, 3300 के आसपास आप बाई कीजिए एंड 3,000 विल बी स्टॉप लॉस। चलिए, व्हाट एल्स, नेक्स्ट वी कैन टेक एमआरएफ। एमआरएफ देखो दोस्त, अवॉइड करने के लिए काफ़ी पहले से मैं कह चुका हूँ, एमआरएफ को अवॉइड करो। अगर आपको टायर टायर प्ले करना है तो आई थिंक अपोलो वॉज सेफ, अपोलो इज बेटर। 205 पे बाय, 245 पे सेल, वो 50 पॉइंट पे, ठीक है। एमआरएफ में मैंने क्लियर कट जो है लास्ट 3 मंथ्स में आपको, इफ यू रिमेंबर, इसका मंथली चार्ट मैंने आपको शेयर किया था। ओके, एंड आई सेड दैट लेट अस वेट फॉर दीज लेवल्स विच इज योर 63,800। उसके पहले कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे एमआरएफ में। ओके, सो अब और गिरने दो, आने दो, लेट इट बॉटम आउट आराम से, एंड देन वी विल सी व्हाट टू डू। ओके, नाउ एमआरएफ, एमआरएफ पे भी एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन सम सेलेक्ट कॉर्पोरेट हाउसेस एंड बात करेंगे धीरे धीरे हर, ठीक है, हिंदुजा अंबानी सब पे बात करेंगे धीरे धीरे, बट कोड वर्ड में जस्ट डायल, ठीक है, जस्ट डायल। जस्ट डायल में आप क्या करना चाहते हैं? जस्ट डायल खत्म हो चुका है, नोबडी डायल जस्ट डायल, ठीक है, निकल जाओ इससे। इप्का लैब्स अगेन, इप्का लैब्स लास्ट टाइम मुझे याद है हमने लिया था पैथेटिक काउंटर, ठीक है, उस टाइम भी यही जवाब था मेरा, आज भी वही जवाब है, ठीक है। डेड काउंटर, ये सब बेरिश काउंटर है, आप लोग क्यों इसमें बाय कर रहे हो? टाटा कम्युनिकेशन, यस दिस वाज समथिंग विच इज गुड, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसको जो है क्यों हमारा क्या ये स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड देयर अबाउट। सो आई थिंक इट इज वेरी क्लोज टू दैट, यू कैन ट्राई टुमारो। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो देन सिंपली एग्जिट फॉर द टाइम बिंग। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दीज stocks for granted, we have to be humble, we have to show respect to the levels, ठीक है, या तो या फिर वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सो आई थिंक ये ऑलमोस्ट, इफ यू रिमेंबर, 1200 1190 और समथिंग आई हैड सेट। सो कल आप देखिए, अगर ये बचता है 5 रुपया इधर उधर आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बचा तो ठीक है, फिर वी विल सी हाउ इट नेगोशिएट्स एंड हाउ इट रीगेन्स। अगर कर लिया तो ठीक, नहीं तो फिर एग्जिट, ठीक है, ग्रेसफुली एग्जिट करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक पे क्वेरी है, काफ़ी काफ़ी रिपीटेटिव क्वेरी है, डोंट स्पैम डोंट स्पैम, आप सुपर चैट कर सकते हो, ये फैसिलिटी है। तो आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक पे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले इफ यू रिमेंबर, जब ये यहाँ था तो मैंने एक ही चीज़ कहा था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाई दिस स्टॉक एंड आई गिव 735 एज अ लेवल जहाँ पे मुझे इस स्टॉक में दिलचस्पी आएगी, ठीक है। क्यों यहाँ पे ये चीज़ कहा था? सबसे पहले तो एक तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि वाई वी शुड एग्जिट एट दिस लेवल प्रिसाइसली, एंड दैट इज डिट्टो द हाई, and then it started to move down. And here also somebody asked me, again I said the same thing, that I am not interested, I will be interested nothing before 735, ठीक है। अब क्यों ये बात हमने कही थी? Let us see the monthly and the weekly chart. If you look at the weekly long term chart, you will see that the stock is moving in a sort of a channel like this, where the channel top is the resistance, okay, and here we have to buy. So that level came somewhere near 735, 720, and that is what I'm expecting. I will not touch ICICI Bank till we reach this channel bottom. इसीलिए मैं कहता हूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखो, प्राइस एक्शन सीखो,
चाहे मुझसे सीखो, किसी से भी सीखो, बट सीखो। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स द अपडेट। अगर आपने शॉर्ट किया है तो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, एंड यू कैन बुक नियर दिस 720-30 जोन। टाटा पावर, टाटा पावर अगेन लास्ट वीक पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दी थी मैंने कि कैसे इसे डील करना है। करेक्ट, सी, रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें याद रहता है। So Tata Power has broken the 65-day moving average with a gap down. I think it is headed toward 202. Tata Power दोस्त एक चीज़ बड़ी सिंपल है। टाटा पावर में या तो मैं 200 के भाव पे कुछ इंटरेस्ट मुझे रहेगा, या फिर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, सो दिस स्टॉक इज लुकिंग एज इफ इट इज क्रैकिंग। सो अभी तो इसमें कोई भी लॉन्ग नहीं है। अगर आप फंसे हैं तो निकलने की पूरी कोशिश कीजिए। आई थिंक 3 days back also after this scandal somebody asked me and I said the same thing कि वेट करिए, या तो यहाँ पे या फिर कुछ ब्रेकआउट होगा तो बाय करेंगे, बीच में लेने का कोई मतलब नहीं है। ओके, and those who are my student, let me just add that look at these couple of candles, right? And you can see what I'm trying to suggest। ठीक है, चलो आते हैं CCL। यस, प्राइस एक्शन जिसको सीखना है आ जाओ भाई, ऐसी प्राइस एक्शन आपको मुश्किल है मिलना। CCL प्रोडक्ट्स, CCL प्रोडक्ट्स इस समय तो बहुत बेरिश है एंड नॉट इंटरेस्टेड। जब तक 420 के भाव पे नहीं आता है कोई भी तरीके का बाय करना इंटरेस्टेड नहीं है। एंड लास्ट स्विंग हाई वाज 494, मेड अ हाई ऑफ 500। हमेशा कहता हूँ जब नया स्विंग हाई बने तो प्रॉफिट बुक करो। LNT is one good counter, but as I suspected that it should come near the 1730 level। कल मैंने एक्सप्लेन किया था इसको कि हेड एंड शोल्डर है, आने तो नीचे फिर बाय करेंगे। सो इट इज स्टिल अ वेरी गुड काउंटर, वेरी गुड, बट थोड़ा सा वॉच करेंगे, अभी नहीं। एक दो दिन थोड़ा टाइम लेना मैं चाहूँगा, एंड देन प्रॉब्ली इफ एवरीथिंग लुक्स गुड बाय करेंगे। एक इसमें मैं बता चुका हूँ 1730 1700, ये एक फाइनल एक सॉर्ट ऑफ स्टॉप लॉस रहेगा किसी भी तरीके की बाइंग एक्टिविटी में। सो अगर आपने बाय की है तो आप उसको एक रेफरेंस लेके चल सकते हैं। फ्रेश ट्रेड इसमें मैं खुद रिकमेंड करूंगा, लेट अस वेट फॉर सम टाइम। राइट नाउ वी हैव जस्ट गॉट दिस फ्रेश ब्रेकडाउन। नेस्ले, चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में आते हैं। नेस्ले, नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया ब्रेक हो चुका है। ठीक है, सो अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं है, हालांकि ये लॉन्ग टर्म काउंटर है, बट अभी कोई मैं नहीं इसमें कुछ एडवाइस दूंगा। जस्ट लेट अस वेट। ठीक है, नेक्स्ट है मैथन एलॉयज। यस, सो दिस स्टॉक आई रिमेंबर, इसे हमने एक अच्छे काउंटर के तौर पे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल विद सॉलिड बॉटम्स, गुड वॉल्यूम्स हियर एट दीज बॉटम्स एंड देन द 200 डे मूविंग एवरेज, इसे हमने डिस्कस किया था। ये एक बढ़िया काउंटर था। ठीक है, बट एज यू कैन सी ये ऊपर से रिजेक्शन दे सकता है। मार्केट्स आर लुकिंग डाइसी, तो थोड़ा केयरफुल रहिए। अपना स्टॉप लॉस 929 पे रखिए, और अगर ये इस डिक्लाइनिंग मार्केट में ये रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है तो इसे इस पे बने रहिए। आई थिंक इट हैज गुड चांस टू डू एटलीस्ट टिल 1385 एंड 1400 लेवल, बट स्टॉप लॉस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ओके, अडानी विल्मर इज अ न्यू बेबी, सो देयर इज नो टेक्निकल्स ओवर देयर। टीसीएस, टीसीएस में क्या बताऊं, कोई नहीं, कुछ नहीं है। पूरे टीसीएस और विप्रो, इन्फोसिस एंड ऑल दीज I've been repeatedly saying that avoid IT for some time. TCS we played this move, then we played this move, okay, and now I think not interested. Okay, IT, stay away from IT for some time. Sigachi Industry, okay, फर्स्ट टाइम मैं स्टॉक देख रहा हूँ। ओके, ओके, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये स्टॉक नहीं है, टोटल डंप है बॉस। 640 से प्रमोटर डंप कर रहा है। ठीक है, पूरा अपना अपने घर का माल वो आपके घर में भेजना चाहता है, सो इसे मना कर दीजिए। पीडीलाइट, ओके, गुड क्वेरी, वेरी गुड क्वेरी, क्योंकि ये एक अच्छा स्टॉक है। हमने इसमें वॉच करने के लिए भी रखा था, वॉच मोड में। गुड, नाइस। लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ डेज, इसमें आने वाला है ट्रेड, बहुत जल्दी इसमें आने वाला है, बट अभी कुछ नहीं करना है। राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस इज नॉट गुड फॉर दिस वन ऑल्सो,
सो थोड़ा सा वेट करेंगे. लास्ट टाइम की मूव बहुत ही सुपर्ब थी. लेट अस वेट फॉर दिस टाइम. पेट्रोनेट LNG, last query for tonight, and then I'm winding up. Somebody's asking view on Nifty, Bank Nifty. So every day we take live session at almost 11 o'clock, and the global markets, cryptocurrency, Forex, MCX, and your Nifty, Bank Nifty. We cover this in the beginning of the section, so you can rewind the video and go through all those analysis. So Petronet LNG, again, recently इसको मैंने एक्सप्लेन किया था that it is in a this large declining structure. यहाँ पे support अच्छा है, तो probably one dead cat bounce can come, but you should exit over here. So वही व्यू है, कोई चेंज नहीं है पेट्रोनेट LNG में. ठीक है. सो आई थिंक दैट्स ऑल. वाइंड अप करते हैं दोस्तों, बहुत लेट हो चुका है एंड ऑलरेडी 1 घंटा 20 मिनट का लाइव स्ट्रीम हो चुका है, विच इज़ लाइक टू मच फ्रॉम अ यूट्यूब परस्पेक्टिव. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें. And all those who are keenly interested and who are serious, only those guys, you can WhatsApp and you can register for the next session that we are having on March 5th and 6th, Saturday and Sunday, 2 days of full weekend dhamal training on in-depth price action and lot of stuff. And that's the way through which you can be added in our Telegram group, where the lot of fun happen. Chali, wind up karte hain. Thank you so much. Wish you all the best. Wish you all the success. And good night. Jai Mata Di.